Now, yesterday's classes we have discussed about theories of language acquisition. There are 4 theories of language acquisition. First is anyone? Yes, socio-cultural theory. It is also called social interactionist theory. SIT. Interaction के spelling anyone? Yes. This is called social interactionist theory or socio-cultural theory. It is an explanation of language development, emphasizing the role of social interaction between the developing child and knowledgeable adults. It means there is interaction between a developing child and the language knowledgeable adults or among their family members or interaction with other children. Now a question arises, who is the proponent of this theory? Who is the founder of this theory? Vygotsky. Yes. They, which country they belong? Lev Vygotsky was a Soviet psychologist, and this theory is given by him. Second theory is yes. The second theory is the behaviorist theory. The behaviorist theory believes that infants learn oral language from other human role models through a process involving imitation, rewards, and practice. Human role models in an infant's environment provide the stimuli and rewards. It means 4 terms: reward, punishment, stimulus, response are the main terms given by behaviorist, and stimuli means here the environmental stimuli. Now a question arises, what is behaviorist theory of language acquisition in real meaning? The behaviorist theory believes that infants learn oral language from whom? This theory believes what? Infants learn oral language from whom? किन से सीखते हैं? Yes, the infants learn language from a process involving imitation, rewards, and practice from their surroundings. They says, yani the behaviorist says, when a child attempts oral language or imitates the sounds or speech patterns, they are usually praised and given affection for their efforts. It means when a child attempts to pronunciate any word or any sound, they are usually praised by their parents or any person in the family. This is called reinforcement, and this also helps the child to learn any language. Behaviorism means व्यवहारवाद. It focuses on the idea that all behaviors
are learned through interaction with the environment. We repeatedly say the children learn through interaction with the environment, and this is called by behaviorists. This learning theory states that behaviors are learned from the environment and says that innate or inherited factors have very little influence on behavior. Just opposite of nativist. Nativist says we have inbuilt plan, or we have genes that allows us to learn language. But behaviorists say that innate or inherited factors have very little influence on our behavior. Third theory is constructivism. Which given this theory? Constructivism या constructivist theory. It is based on Jean Piaget's cognitive development. संज्ञानात्मक विकास यानी this theory believes on cognitive development. There are 4 key principles of constructivism. Principles of constructivism. First, knowledge is constructed. Second, people learn to learn as they learn. Third, learning is an active process. They also say several principles, but 4 are important. As for example, learning is a social activity, learning is contextual, knowledge is personal, learning exists in the mind, motivation is key to learning. First, knowledge is constructed. Second, people learn to learn. सीखने के लिए सीखते हैं. As they learn. Third, learning is an active process, not passive. Active process. Fourth, learning is a social activity. Fifth, knowledge is personal. Anyone who learns for himself. Learning exists in the mind, and motivation is key to learning. It also says the constructivism is a theory of learning in which the learners are provided the opportunity to construct their own sense about what is being learned by building the connection through experiencing things and reflecting on those experiences. It means, as I said yesterday, what is constructivism? What we know earlier, and thus we connect and this constructivism theory is given by whom? Jean Piaget. कि जो कुछ भी हम आज सीखते हैं उसका संबंध जो हम पहले से सीखा होता है उस नॉलेज से जोड़कर ही उसे सीखते हैं, उसे उसके साथ उसका इंटीग्रेशन होता है, तभी हम उस नॉलेज को गेन कर पाते हैं.
but the most important and scientific theory is nativist theory, and that is based on, that is given by Chomsky, Noam Chomsky, Chomsky, Chomsky. It is also called functional theory of language acquisition. And as you know, the nativist theory is a biologically based theory which argues that humans are pre-programmed and humans have genes with the innate ability to develop language. Noam Chomsky is the main theorist associated with the nativist perspective. Nativist theories of language acquisition are also known as formalist, generativist principles and parameters. It have different names. Words and rules और यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरीज, यानी ये कई नामों से जानते हैं नेटिविस्ट थ्योरी को। इसको फॉर्मलिस्ट थ्योरी भी कहते हैं, जनरेटिविस्ट थ्योरी भी कहते हैं, प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स भी कहते हैं, वर्ड्स एंड रूल्स या फिर यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी भी कहते हैं। एंड एज यू नो, in this theory main thing is LAD, language acquisition device, and this theory says that we have a built-in program in our mind which allows to receive or gain the language, and this device is called LAD, language acquisition device. Now any problem to understanding these theories? Anyone? यानी एक एक लाइन में आप चारों थ्योरी को डिस्क्राइब कर सकते हो। हिंदी में अगर इसे समझे तो कैसे समझेंगे? पहला हमारा सोशियो कल्चरल थ्योरी है, उसमें है जो किसके द्वारा दिया गया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, चेतना। यस, सोशियो कल्चरल थ्योरी में एक ही बात कही गई है, इसमें सोशियोलॉजी और बायोलॉजी दोनों को आधार बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि चाइल्ड जो कुछ भी ग्रहण करता है, जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, वह सब सीखता है, वह सब उसके भाषा के रूप में यूज करता है, वह सब भाषा अधिग्रहण में आता है, लैंग्वेज एक्विजिशन में आता है, और वह उसके जो सीखता कहाँ से है, तो अपने परिवार से, समाज से और अपने चारों ओर के वातावरण से। दूसरा व्यवहारवादी कहते हैं कि इसमें कंडीशनिंग यूज होती है, जो कल हमने आपको बताया था, और इसमें रिवार्ड, पनिशमेंट, ये सब इसमें मोटिवेशन का काम करते हैं। इसमें इसके जो प्रवर्तक हैं कौन है? BF स्किनर। थर्ड आपका वही कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, वो जस्ट उल्टा कहते हैं। व्यवहारवादी और नेटिविस्ट के सब अपोजिट ही हैं लगभग। वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वह हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, यानी जो कुछ हमने अपने वातावरण से पहले सीखा है उससे वह
इंटीग्रेटेड होना चाहिए, उससे वो कनेक्टेड होना चाहिए, तब हम सीखने में हमें आसानी होती है। और फोर्थ है नेटिविस्ट, जो कॉम्स्की के द्वारा दिया गया है, और इनका कहना है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसी का होता है तो वह हमारे माइंड में जो डिवाइस है, हमारे में जो जीन्स है, उसके द्वारा ही हम भाषा को ग्रहण कर पाते हैं या भाषा सीख पाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। दीज आर 4 थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। प्रिंसिपल्स कंस्ट्रक्टिविज्म के थोड़े हमने बताया आपको, 5-6 प्रिंसिपल्स हैं, वैसे तो कहते हैं कि 4 इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये सभी लगभग, जैसे नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, हमेशा नॉलेज क्या है, कंस्ट्रक्टेड होता है। पीपल, जो उन्हें सिखाया जाता है वही सीखते हैं। लर्निंग में जो एक्टिव प्रोसेस है, हमेशा करके सीखते हैं, पैसिव भूमिका में रहते हैं तो सीख ही नहीं सकते, हमेशा एक्टिव भूमिका में, एक्टिव रोल में जो रहते हैं वही सीखते हैं। और लर्निंग है जो सोशल एक्टिविटी, सामाजिक क्रिया है। नॉलेज इज क्या बताऊं, यूनिवर्सल ग्रामेटिकली इस किसको, वो उसको बताया था ना हमने, नेटिविस्ट को इसलिए कहते हैं कि इसे यूनिवर्सल, यानी पूरे वर्ल्ड में इस थ्योरी को ज़्यादा मान्यता मिली हुई है, और ग्रामर पर बेस्ड थ्योरी होगी, क्योंकि हम जो भाषा सीखते हैं वो अगर रूल्स और ग्रामर पर बेस्ड होगी तो वह क्या कहलाएगी, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी कहलाएगी। ये हम अपने आइडियाज से बता रहे तुम्हें, हाँ, मुझे जैसा लगता है। जैसे इसके लिए फिर थोड़ी और डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें है ना कि प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स भी हैं, यानी कुछ सिद्धांत भी हैं, कुछ पैरामीटर्स भी हैं, उसके आधार पर ही हमें भाषा सीखते हैं। और नेटिविस्ट तो नाम है नेटिव, नेटिव से तो वैसे भी आप देखते हो, नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है, मातृभाषा। तो मातृभाषा में तो बहुत सारी चीजें आती है, वह उसमें जो जिस क्षेत्र में होता है वह उस क्षेत्र की भाषा आसानी से सीख लेता है, सीखता है ना। मान लो जो तमिल है, वो तमिल भाषा ही तो उनकी मातृभाषा होगी। जो कुमाऊं में है, तो क्या है, उनकी कुमाऊनी भाषा और नेटिव लैंग्वेज होगी। तो फिर ये कहते हैं कि वो हमारे ब्लड में आती है, हमारे जीन में आती है, कि जो हम अपनी भाषा सीख लेते हैं। तो नेटिविस्ट थ्योरी तो इसलिए कहते हैं, लेकिन वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। और जैसे का यूनिवर्सल ग्रामर, यानी हर जो भाषा है उसके अपने ग्रामर होते हैं, अपने ग्रामर और अपने रूल्स होते हैं, उस पर ये बेस्ड होगी, इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। क्योंकि हर नेटिव लैंग्वेज की रूल्स रेगुलेशंस, रेगुलेशंस तो क्या ही होंगे, रूल्स, और जो ग्रामर होंगे वो अलग अलग होते हैं। हाँ बताओ, बताओ। हाँ, तो हाँ, ये सही है, लेकिन वही बात तो मैंने भी बताई कि अगर वो बच्चा तमिल क्षेत्र में है तो वह अपनी भाषा में ही तो बोलेगा, वो उस जगह के ग्रामर, उस जगह के तो ये फॉलो करेगा। अगर हम हिंदी भाषी हैं तो क्या है, हमारे यहाँ जो बच्चा है वो हिंदी बोलेगा, या जो परिवार में बोली जाती है वही भाषा बोलेगा, और उसके जो ग्रामर या सेंटेंसेज होंगे वो उस किस भाषा पर आधारित होंगे। तो तुम्हारे एग्जाम्पल भी ठीक है। दूसरी चीज है, जैसे वो कहते हैं कनेक्ट करने को, व्यवहारवादी,
तो अगर मान लो तुमने किसी और एक चीज और देखना है कि अगर किसी बच्चे को लाइव कोई चीज दिखाते हो और तब बताते हो तो वो जल्दी सीखता है। मान लो किसी बच्चे को तुमने डॉग की पिक्चर दिखाई तो वह उतनी जल्दी उसे नहीं सीख पाएगा जितनी जल्दी वह लाइव डॉग को देखकर सीख पाएगा। और अगर वो तुमने उसे ये बताया कि डॉग बार्क्स, कुत्ते की आवाज सुनकर वह अगर रिएक्शन देता है और आप उसे बताते हो कि हाँ यह कुत्ता भौंकता है या द डॉग बार्क्स, तो दोनों को वह कनेक्ट कर लेता है। छोटा बच्चा अगर आप कहते हो जाओ खेलो, लेकिन वह अगर वह जानता है कि ये बॉल है और इससे हम खेल सकते हैं तो वह दोनों को कनेक्ट कर लेता है। तो वह क्रिया यानी खेलना और जो ऑब्जेक्ट है दोनों को कैसे यूज करेंगे यह बोलना सीख लेता है। क्या ठीक है कि नहीं? तभी तो वह यूज करना सीखेगा कि ये खेलना क्या है और बॉल क्या है, किससे खेलेंगे। पहले तो ये सीखेगा किससे खेलेंगे और फिर पूरा सेंटेंस बोलने के लिए वह यूज करेगा कि किस तरह इसे यूज किया जाता है। और चूंकि हम लोग सारी चर्चा भाषा अधिग्रहण लैंग्वेज एक्विजिशन की कर रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग की नहीं कर रहे, सीखने की नहीं कर रहे, वह जो खुद से सीखता है उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हारी बात भी सही है। ठीक, और कुछ पढ़ा है इसके बारे में? कहीं और ढूंढना। हाँ, इमेज क्रिएट करता है। हाँ, हाँ, उसके बाद लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है आने की। इसलिए ठीक, सही पढ़ा तुमने। और ब्रेन के तो पार्ट्स और फंक्शन जो बायो वाले होंगे उन्हें ज्यादा समझ में आएंगे। और जो ये अभी अब उसमें भी आपको पढ़ना है, जब लैंग्वेज स्किल्स पढ़ोगे ना तो देखना उसमें भी कितने सारे ऑर्गन्स का क्या क्या रोल है, सब थोड़ा थोड़ा उसमें आएगा कि स्पीक में जैसे स्पीकिंग है, लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग में है, तो उसमें ब्रेन के या कौन से पार्ट का क्या रोल है, ये सब थोड़ा थोड़ा उसमें आता है। लेकिन अब जो बायो वाले नहीं है उनको पढ़ने वो समझने में फिगर देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। क्योंकि ब्रेन के तो इतने ज्यादा माइन्यूट चीजें हैं उसमें ना, जो आप जब तक डेप्थ में नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आती। वैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि माइंड कहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ, हाइपोथैलेमस है हमारे ब्रेन में एक पार्ट, ग्लैंड का जो मास्टर ग्लैंड है, कौन है वो? प्यूटरी। और वो भी कहाँ से रिलेटेड होता है? हाइपोथैलेमस से है। तो वहां से सारी चीजें कंट्रोल होती है और फिर ब्रेन के किस पार्ट से क्या चीज कंट्रोल होती है ये भी आप पढ़ोगे। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तब तो हम अभी घर पे 15 दिन खाली बैठोगे, नेट निकाल के, नेट से या ब्रेन से कहीं भी बुक से आप इसे डिटेल से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। और इसमें और भी बहुत सारी बातें आती है कि कितने सारे सेंस ऑर्गन्स का यूज कर रहे हैं। जैसे कल भी बताया था हमने आपको, जे अभी हमारा इंटरेक्शन उतना नहीं हो पा रहा है। क्यों? कि मेरा काम, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, यानी सिर्फ एक सेंस ऑर्गन्स का यूज हो रहा है, हियरिंग। लेकिन क्लासरूम में बैठे होते हैं, यहाँ भी हो सकता है लेकिन हमने अपने कैमरे ऑफ किए हुए हैं। लेकिन क्लासरूम में जब होते हैं हम तो हमारे पास ब्लैक बोर्ड होता है और आईज, ईयर यानी दो दो सेंस ऑर्गन्स का यूज होता है, तो इंटरेक्शन ज्यादा होता है और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी ज्यादा अच्छी लर्निंग होगी। यही बच्चों के साथ भी होता है कि अगर कोई बच्चा परिवार में अकेला है
तो उसकी लर्निंग उस बच्चे की तुलना में कम होगी जो बच्चा बड़ी फैमिली में रहता है या फिर जिस फैमिली में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। उसी प्रकार जिस फैमिली में पेरेंट्स, जो फैक्टर्स जो हमने बताए थे आपको कि अगर पेरेंट्स अलग अलग भाषा के होंगे, अलग अलग भाषा बोली जाएगी, तो क्या होगा, वहाँ भी बच्चों को भाषा सीखने में दिक्कत आती है। तो ये सब तो है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? एक क्वेश्चन और है कि व्हाट इज स्किनर्स एंड कॉम्स्कीज लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, दोनों में डिफरेंस क्या है? किन किन चीज पे वो दोनों एक दूसरे से डिफर करते थे? तो कहते हैं कि स्किनर बिलीव्ड चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कल बताया था हमने आपको, दैट चिल्ड्रन रिसीव रिवार्ड्स फॉर यूजिंग लैंग्वेज इन ए फंक्शनल मैनर। Chomsky theory states that children have the innate biological ability to learn language। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि दोनों की थ्योरी में डिफरेंस क्या है, तो आप एक लाइन में बता सकते हो इस तरह, जो आप जानते हो। इसी तरह आप चारों थ्योरी में या किसी भी दो थ्योरी में डिफरेंस किसी कोई पूछे तो आप बता सकते हो। और किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? नहीं है? अब आपको एक चीज बताते हैं जो लैंग्वेज लर्निंग या इसके लिए कहते हैं कि कहा जाता है कि किसी ने कहा है, उनकी बातों पर बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आप देख सकते हो कि कहते हैं कि देयर आर नो राइट और रॉन्ग वेज टू लर्न अ लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज लर्निंग के संबंध में कह रहे हैं, भाषा सीखने के लिए, कि देयर आर नो राइट और रॉन्ग वेज टू लर्न ए लैंग्वेज। भाषा सीखने का कोई भी सही और गलत तरीका नहीं है। दूसरी बात वो कहते हैं कि डोंट एज्यूम दैट एनी वन टीचिंग मेथड विल वर्क फॉर यू। आप यह मत सोचो कि कोई भी एक टीचिंग मेथड आपके लिए अच्छा होगा। तीसरी बात कहा उन्होंने कि फाइंड द मेथड दैट वर्क्स फॉर यू। जरूरी नहीं है कि सारे मेथड एक पे यूज हो या वो आपके जो मेथड दूसरे के लिए यूजफुल है वो आपके लिए भी यूजफुल हो। इसलिए कहते हैं कि वह मेथड आप चूज करो जो आपके लिए यूजफुल हो। फाइंड द मेथड दैट वर्क्स फॉर यू। फोर्थ, लर्न द स्क्रिप्ट। आप स्क्रिप्ट को सीखो, पढ़ो। फिफ्थ ये कह रहे हैं कि लर्न अबाउट हाउ यू लर्न। आप ये सीखो कि आप कैसे सीख सकते हो, दूसरा कैसे सीखता है ये नहीं सीखो। आप अपनी एबिलिटी देखो, अपना इंटरेस्ट देखो, और आप ये देखो कि आप कैसे सीख सकते हो। जब आप दूसरी भाषा सीखते हो उसके लिए है अपनी। तीसरी बार ये उसके नेक्स्ट कहता है रिपीट रिपीट एंड रिपीट। यानी जो भी भाषा आप सीख रहे हो उसे बार बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, तब आप उससे सीख पाओगे। और एक कहते हैं कि जो भी, यानी ये कह रहा है कि कोई भी तरीका सीखने के लिए परफेक्ट नहीं है। इसका कंक्लूजन निकालें तो क्या कहा जा सकता है कि कोई भी तरीका ना तो सही है ना गलत है। जो आपको सूट करता हो, जिस तरीके से आप सीख सकते हो, जिस मेथड को आप अपनाकर अपना भाषा सीखने में उसे यूज कर सकते हो, वही मेथड अपनाओ और दूसरे की नकल मत करो, ऐसा कहा जाता है उसे। जैसे टीचर कोई लैंग्वेज सिखाने को क्लास में जाएगा तो क्या करेगा, वो तो पहले एक ही मेथड यूज करेगा ना। ये
किनके लिए? एडल्ट्स के लिए। जब आप लोग कोई नई लैंग्वेज सीखने जाओगे तो क्या करोगे? यही तो करोगे। किसी को लिख कर याद होता है, किसी को रट कर याद होता है, किसी को बोल कर याद होता है। लेकिन कभी भी जब आप नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करोगे या सीखोगे तो उसका जितना ज़्यादा यूज करोगे उतनी ज़्यादा आप अच्छी तरह उसे सीख पाओगे। यानी विदाउट हेजिटेशन यू कैन स्पीक everywhere. Then you will learn the language more. तो और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग के। इसके भी प्रिंसिपल्स है, लर्निंग एक्विजिशन के भी और लर्निंग इसके भी। सिलेबस में तो सिर्फ दिया आपको लैंग्वेज लर्निंग के प्रिंसिपल्स। लेकिन अगर आप जानना चाहो कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं एक्विजिशन के भी, तो आप जान सकते हो थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन, आप असाइनमेंट बना रहे हो? अभी शुरू किया नहीं किया? हाँ, कह रहे असाइनमेंट बनाना शुरू कर दिया? अभी नहीं? कब करोगे? कौन सा? क्या बताओ? जितना लिख पाओ तुम। लैंग्वेज एक्विजिशन में जो बात आती है प्रिंसिपल्स की, इसमें फर्स्ट है, दो चार प्रिंसिपल्स हैं हल्के हैं। व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन? फर्स्ट है कम्युनिकेशन कम्स फर्स्ट, नॉट ग्रामर। As we know, any child does not follow the grammar. They will communicate with parents or their family members. Consider a child's natural language acquisition process. When young children listen to a phrase for the very first time, they try to connect what? The sequence of sounds means what? Then what these sounds are trying to achieve. Third, how that task or goal is achieved. Here, what, why, and how means when a child acquire knowledge, acquire language, first he, he listen a word and then try to pronunciate that word, and then he wants to use
with their family और communicate with their family members। यानी क्या कहते हैं कि पहले जो एक्विजिशन का पहला स्टेज है वो क्या होगा, वह सिर्फ कम्युनिकेशन पर ध्यान देगा, ना कि ग्रामर पर। सेकेंड कहते हैं कि वैकेबुलरी ग्रोज वाया फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस नॉट बाय रोट मेमोरी। छोटा बच्चा क्या आप रट के याद कर पाएगा वर्ड्स को? आप उसे कैसे सिखाओगे? धीरे धीरे। यानी कोई भी जो शब्द है वह रोट मेमोरी से यानी रटने के द्वारा वह नहीं सीखता, वह धीरे धीरे सीखता है। और वह जितनी ज्यादा उसे लाइव चीजें दिखकर सीखता है, वह उसकी तुलना में बिना देखे अगर आप सिखाना चाहोगे तो वह धीरे सीखिएगा। थर्ड चीज कहते हैं इसमें कि प्रोनाउंसिएशन डेवलप्स विथ कांस्टेंट लिसनिंग, रीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसका विकास कांस्टेंट लिसनिंग के द्वारा, रीडिंग के द्वारा और कम्युनिकेटिंग के द्वारा होता है। फोर्थ कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन डेवलप्स विथ कांस्टेंट लिसनिंग, रीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग है, तो हमने बता दिया। फोर्थ है हायर प्रोफिशिएंसी कम्स फ्रॉम प्रोग्रेसिवली कॉम्प्लेक्स यूज ऑफ द लैंग्वेज ओवर टाइम। यानी जो हमने पहले बार आपको बताया था एडवांस्ड और उस वाली चीजों में, वही चीज यहाँ भी है कि प्रोफिशिएंसी यानी क्षमता उसकी धीरे धीरे बढ़ेगी। यानी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज वह जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे वह बड़ा होगा, वैसे वैसे उसे वह यूज करेगा। यानी एज ए चाइल्ड ग्रोज ओल्डर देन he uses the language in progressively more complex ways। यानी ये 3-4 प्रिंसिपल हैं इसके। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन कम है, ऐसे हमने आपको 4 बताए। पहला क्या बताया? कम्युनिकेशन कम्स फर्स्ट नॉट ग्रामर। सेकंड, वैकेबुलरी ग्रोज वाया फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस नॉट बाय रोट मेमोरी। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि वोकेबुलरी ग्रोज वाया फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस नॉट बाय रोट मेमोरी। थर्ड, प्रोनाउंसिएशन डेवलप्स विथ constant listening, reading and communicating। And fourth, higher proficiency comes from progressively complex use of the language over time। इसे आप छोटा भी कर सकते हो पॉइंट को कि यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ओवर टाइम। यानी जो प्रिंसिपल्स हैं बड़े बड़े हमने बोल दिए आपको, इसे आप छोटा भी बना सकते हो। पहला बहुत छोटा है कि वह ग्रामर का यूज नहीं करेगा, कम्युनिकेट करेगा पहले। दूसरा क्या है, उसकी वोकेबलरी यानी उसका शब्दकोश धीरे धीरे बढ़ेगा, ना कि रोट मेमोरी या क्रैमिंग। रटने को क्या कहते हैं? क्रैमिंग। कि क्रैमिंग से नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात क्या कही कि उसकी जो उच्चारण क्षमता है, प्रोनाउंसिएशन है, वो किससे बढ़ेगी? सुनने से और समझने से और कम्युनिकेट करने से। और चौथा है कि वह उसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलने की जो क्षमता है वो कब आएगी? जब वह धीरे धीरे बड़ा होगा। यही 4 प्रिंसिपल्स हैं इसके लैंग्वेज एक्विजिशन के। और लैंग्वेज लर्निंग के तो बहुत सारे हैं जो कई अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं और जो आपके सिलेबस में है, लेकिन किसी एक का पढ़ लोगे। ये कल परसों पढ़ना, ठीक? आप कुछ पढ़ के भी आना।
क्या पढ़ के आओगे? प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन का तो सिलेबस में है भी नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग यानी जब भाषा सीखोगे, वैसे तो किसी ने कह दिया, जैसे हमने आपको बताया कि कोई राइट और रॉन्ग वे नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है जो परफेक्ट है। आप उस मेथड का यूज करो जिससे आप अच्छी तरह सीख सको, और जो भी भाषा सीखो उसका डेली यूज करो। रिपीट 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 अगेन कहते हैं। इस तरह ये तो कहने सुनने वाली बातें हैं, लेकिन जो अदर लिंग्विस्ट्स हैं उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। इसमें इनिशियल है, ग्रेडिंग है, प्रोपोर्शन है, मोटिवेशन भी है, इंटरेस्ट भी है। एक तो आप पहली बात है जान लो कि कोई भी लैंग्वेज जो हम सीखते हैं, अगर हम कुछ भी नहीं देखें, बुक्स नहीं देखें, नेट नहीं देखें, तो हम अपने आप से क्या जो अपने फील करते हो, किसी भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहली चीज है वो क्या है, जरूरी इंटरेस्ट है कि नहीं? कि जब तक आपको किसी भाषा को सीखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप उस भाषा को सीखना नहीं चाहोगे, या आपको उस भाषा की उपयोगिता का पता नहीं होगा। जब आपको उस भाषा को यूज करना आप जानोगे और आपको लगेगा इस भाषा को सीखने से आपको कुछ फायदा है, तब सीखोगे। या फिर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तब सीखोगे। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो अपनी उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती है। जो चीज़ें हमें स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा होती हैं, वो तो अलग चीज़ है, उसको हमें पढ़नी होती है, क्योंकि हमें एग्जाम देना होता है, पास करना होता है कि नहीं निकिता? जैसे बचपन में हिंदी पढ़ाई गई, इंग्लिश पढ़ाई गई, संस्कृत पढ़ाई गई, तो ये तुम्हारी क्या थी? मजबूरी। इंटरेस्ट हो ना हो, इसे क्या करना है? पढ़ना है। इसने अनम्यूट क्यों हो गई? अनम्यूट करने को कहा तुमने unmute। तो चेतना तो स्कूल में जो सब्जेक्ट या जो लैंग्वेज आप पढ़ते थे, तीन ही तो पढ़ते थे ना, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। संस्कृत में किसी का इंटरेस्ट था इसमें से? है रमेश? संस्कृत में, अच्छा। तो अभी भी होगा आपका इंटरेस्ट, है ना? कुछ याद है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, संस्कृत में कैसे बोलेंगे? बोलो। यहाँ एक चीज ध्यान रखो, तीनों प्लूरल बहुवचन है ना? देखो मेरा इंटरेस्ट हो ना हो, हमने भी, लेकिन मुझे भी थोड़े बहुत इंटरेस्ट था स्कूल में। हाँ, हमें सारे लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा है, भले ही हमें कम आता हो, लेकिन जैसे आप पतती कहा ना, तो क्या है, पतती, पतता, पतंती होते हैं ना? हाँ, तो इस तरह अब लैंग्वेज में क्या होता है, हमेशा हम लोग जो लैंग्वेज सीखते हैं उसमें हमेशा होता है कि हमें ट्रांसलेट करने को कहा जाता है ना। लेकिन इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, उस भाषा को छोड़ देते हैं। अगर हम उसी भाषा में लिखने का प्रयास करें, कोई लेटर, कोई एस्से, तो क्या होगा, तब हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी और हमें वो भाषा ज़्यादा आएगी, तो ग्रामेटिकली करेक्ट भी होगी। लेकिन हम हमेशा ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और करते करते फिर छोड़ देते हैं। जैसे अभी आप जब जाओगे थर्ड सेमेस्टर में, तो लेसन प्लान बनाने का आएंगे, जिसका सब्जेक्ट संस्कृत होगा, तो उस जगह संस्कृत में ही लेसन प्लान बनाए जाते हैं। तब आपको अगर संस्कृत अच्छी से नहीं आएगी तो आपको दिक्कत आएगी, जिनका सब्जेक्ट संस्कृत है।
तो इसलिए कहते हैं कि जो भी अब जब हम कोई भाषा सीखने जाते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज होती है हमारी रुचि कितनी है, हमारा इंटरेस्ट कितना है, हमारा मोटिवेशन लेवल कितना है और हमारी एबिलिटी कितनी है। मान लो बहुत चीज हम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन हम सीख नहीं पाते क्योंकि हमारी एबिलिटी या हमारा आईक्यू या हमारा जो भी कह लो मेंटल लेवल उतना नहीं होता। तो इस तरह बहुत सारे एटीट्यूड क्या है आपका उस लैंग्वेज के प्रति, बहुत चीज आती है, लेकिन सिद्धांत अलग चीज है से आप बुक में पढ़ोगे, जो उसी को मानेंगे उसी को लिखेंगे। ठीक है, मंडे को पढ़ के आओगे? यस, ओके, नाउ क्लास इज ओवर। ओके।